we wanted your point that if we sit again here after 5 years, 2031 में हम लोग वापस बैठते हैं तो उड़ीसा कहाँ पे हो? Next 5 years, definitely Odisha will be in different place, much better than what we are today right now. And Odisha में रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिनरल्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, एजुकेशन है, हेल्थ, सब कुछ है. ऑल्सो सर, जब आप तत्वा शुरू कर रहे थे तब आपने एक स्टोरी हमें पहले बताया था कि कैसे करके आप इंडस्ट्री गैप को फिल आउट कर रहे थे और वो कैसे करके एक बड़ा कंपनी बना. तो वो स्टोरी अगर एक बार बता सकें. नहीं, मैंने सोचा कि हम लोगों ने जब 2002 में कंपनी शुरू किया, वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सेलिंग इन द मार्केट. उसके लिए पैसा नहीं था. वी हैड ओनली लेस देन $100 एंड सर, वूबल में हम लोग एक चीज़ इनिशिएट कर रहे हैं कि जो एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको फिल आउट करने के लिए हमने बहुत सारे कंपनीज़ को ऑनबोर्ड किया है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं और फिर जो एकेडमिक में स्टूडेंट्स हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करते हैं ताकि वो भी प्रूव कर पाएँ कि हाँ, ये प्रोजेक्ट मैं सॉल्व किया हूँ. एंड इट इज़ ऑल्सो प्राउड मूवमेंट फॉर देम दैट आई एम सॉल्विंग अ इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम. So, what do you think about this being adopted by students and professionals? उनको कैसे benefit हो सकता है और क्या उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माने you are doing such a great job. I think a much awaited thing in the country like India. We have 1.4 billion people. Many people coming out graduates, but many people said that they are not employable. Hello everyone, welcome back. I am Akash Jaiswal, CEO of Wooble, and today's episode is for every founder who is building from a non-obvious place and refusing to accept that geography decides destiny. Our guest didn't just talk about building from Odisha, he actually did it. He is one of the entrepreneurs who has helped put Bhubaneswar on the ITS map through sheer consistency, building teams, serving real clients, and staying in the game long enough to become an institution. He is the founder and managing director of Tattva Technologies, a Bhubaneswar-based technology services company he launched in the year 2002. His story is often cited as started small, scaled big story, including being recognized as building from very modest beginnings. And beyond his company, he is shaping the ecosystem. He currently serves as the president of TiE Bhubaneswar, working at the intersection of founders, industries, and community building. Please join me in welcoming Mr. Ayaskanta Mohanty today. So, sir, you have given your blood, sweat to Tattva, building an empire, a legacy, and we all know the legend of the 5,000 rupees startup. But before Tattva, when you were working for your first job, what did you buy with your first salary? Was it a gift for yourself or someone in your home? My first job, I was working with a company for Chennai, and I got my first, because that time I was an intern. My 1,500 was my stipend. So that you may call that a first salary, 1,500. So when I got 1,500, that I was staying with my one of auntie, I said I should buy some sweets for their home, and then thought of for that how to save something out of that, even 1,500 also. So not thinking to spend, honestly, I didn't think I'll go and buy shirt, auntie. It was not in mind. I said how much I can spend out of that. That was it's a mindset. I got some sweets for them, and that's all. So sweet is something we are really connected to. Whenever celebration comes in India, it's related to sweet. You travel the world for Tattva and as well as for TiE. But when you land back in Bhubaneswar, what is that one local dish that you want to, which your homecoming feels incomplete without it? Let me very honestly tell you that I am not that food lover, very honest with you. मुझे खाना है, कुछ पेट भरना है, ये फोकस दूसरी चीज़ में रहता है. But still when I come to my home, I always eat my typical that rice with dal, and typical and basic, because when you go outside, I just came out of Colombo, 7-8 days there and other places. All this outside food, घर का खाना जो होता है ना, चावल दाल और ये अलग होता है भाई, ये प्यार से वो खाने के लिए मन तरसता है कि चावल नहीं मिलता है. राइस यू वोंट गेट इट एवरीवेयर, टिपिकल ओडिया राइस.
So that simple food with some bhaji, that the only thing I look. But I like gupchup and my local food, local street food of Bhubaneswar. Much I think in the 7 days, I think 3-4 days I go around in evening and enjoy the things. Okay. So, sir, you mentioned that you recently visited Colombo for the Thai Global Conference. So, what are some of your, what we say, takeaways from their event? Thai Con Colombo, not Thai. TGS was there in Global was there in Jaipur. In Colombo, I was there for the Thai Con because Thai Bhubaneswar has signed country partner with the Thai Sri Lanka, Thai Colombo. On that basis, we had gone there. So amazing city, मुझे बहुत अच्छा लगा. More important, I saw that people are very warm. They all well prepared. I visited couple of companies there. I saw lot more professionalism, not from the promoters or the CEO or the CXO. Even if the person, receptionist, the person who is first person interact with him or her, the way she will interact with you, she will receive you, will speak to you, that gives a different experience. That I could see there's something we have to build our team. You go to any government office, any private office, anywhere in this part of the world, then they don't accept you in that kind of happily or that kind of happiness you cannot see. Starting from the security to everybody. Something I think they feel you are something, the alien or something outside, something like that. But they don't make you feel comfortable. What I have seen them, सर आपने आए हैं बैठिए सर साथ बोल रहे थे प्लीज हैव ए सीट टेक ए टी मेरे को विद इन 5-10 डेज मेरे को कंफर्टेबल दैट्स व्हाट स्पेशल थिंग एंड दैट इज नॉट ओनली फॉर दिस इवन इफ फॉर द लीडर्स like CEO, CXO, co-founders, founder, even if established businessman, they'll try to make you feel that Colombo is the city of your home, that kind of thing. That is what we should learn from them. So, sir, if Tatva was not built, like the IT industry that you are operating now, then what could be something else that you would be doing? Your passion, like singing, cooking. What is the most second most passionable thing? Nee, always there is a dream from my not childhood, say in my college time, to do something of my own. I studied, then I worked with good company, in so small company, big company, Indian company and international company also. Learn lot of things out of there also. But हमेशा दिमाग में रहता था कि मेरा खुद का कुछ बनाऊंगा, खुद कुछ करूँगा. जैसे कि बोलते हैं कभी कभी बोलते हैं ना अपना ऐसे कुछ धुआं निकलेगा इंडस्ट्री से, ऐसे कुछ करूँगा. सो दो आई वाज फ्रॉम IT, तो IT कंपनी में काम करा, देन आई टर्न टू IT. नहीं होता तो आई वुड हैव वर्क समथिंग व्हिच इज समथिंग वेरी, जैसे कि समथिंग लाइक ग्रैंड वे, समथिंग लाइक एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म, समथिंग वेयर पीपल इन्वॉल्व. आई लव टू वर्क दोज काइंड ऑफ इंडस्ट्री. तो सर आपने एक स्टूडेंट आप एक स्टूडेंट थे, फिर आप एक इंटर्नशिप किए IT कंपनी में. उसके बाद फिर कैसे वो करेज आया कि मुझे एक अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहिए, या फिर मैं एक अपना कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ? कोई तो मोटिवेशन होगा, या फिर कोई पर्सन को देख के आपको इंस्पिरेशन आया होगा कि इफ ही कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट. ऐसे कुछ नहीं है, इट्स नॉट हैपन लाइक दैट. बट I thought of, जैसे बताया कि I wanted to do something of my own, and though I was working, even if जब काम भी कर रहा था ना, मैं सोच रहा था कि मेरा कंपनी है, मेरा है. जो डिवीजन में मैं काम कर रहा था, जो कंपनी में काम कर रहा था, I was so engrossed in my result, outcome, team building, cost, all this factor to be a good entrepreneur, business के चाहिए. Knowingly, unknowingly, I was doing for that division. And couple of company I worked with, I was very close to become very close to the, because of my this attitude of going extra for the company. So I was noticed by the leaders, my top management, and I become very close to the top management. They started, I connected with them, and many cases, last two companies, the top leadership started interacting with me for decision making kind of things, taking my view on that. Some cases the company totally
लॉस्ट, दे सेड कि ये डील पूरा चला गया, कुछ नहीं होगा. I don't know how that energy, confidence came within me. They sent me, and I turned the table, and bagged very big orders, and I got double, triple promotions. मेरा बॉस का बॉस हो गया मैं within 1 or 2 years kind of things. So that gives someone का confidence. हमेशा जिसके मिलता था तो बोलते भाई यू आर ए पर्सन टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन, तुम नौकरी करने का आदमी नहीं हो, बोलते थे कभी जिनसे मिलता था. And that's something, and also my initial intention to build something, do something of my own was there already in there. So क्या होता है ना, once you start thinking at that line, start dreaming on that line, they do something of my own, that dreams, that idea becomes slowly crystallized. You have to focus, passionate, and constant thinking at that time. सो इसीलिए मैं बोलता हूँ इस ड्रीमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, एनी स्टूडेंट. यू वांट टू बी ए गुड प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर, व्हाट एवर थिंग्स यू डू इन लाइफ, पहले दिमाग में पहले होता है. आप सोच लीजिए 5 साल के 10 साल के में मुझे क्या करना है, मैं क्या बनने वाला हूँ. ऑन दैट बेसिस यू स्टार्ट ड्रीमिंग, देन स्लोली वो अपने एक्शन में, थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. आप ऐसे करने लगोगे, आप अचीव करोगे. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सोचना. मान लीजिए जब आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, आप हर गाड़ी को देखते हैं, ये गाड़ी कैसा है, उसका ये कैसा है, चल रहा है, कितना माइलेज है, कितना पूछते हैं. स्लोली आप हो जाते हैं कि मुझे एक गाड़ी लेना है. सेम बिजनेस में होता है भाई, आप हमेशा चलते हैं मैं कुछ करूँगा. देन आई स्टार्ट इंटरेक्टिंग सो मेनी पीपल, ये बिजनेस में क्या है, वो बिजनेस में क्या है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ IT में मेरा कुछ नया था, आई थॉट वी इजी फॉर मी टू डू समथिंग IT विथ लीस्ट इन्वेस्टमेंट. IT और इस सर्विस सेक्टर में क्या है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम में आप शुरू कर सकते हैं. मे बी दैट वाज रीजन आई स्टार्टेड दिस वन. डेफिनेटली सर, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स अब 2004-5 में सारे बैंगलोर में स्टार्ट हुए या फिर दिल्ली में स्टार्ट हुए. बट अभी भुवनेश्वर में भी बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं. तो इफ़ यू वर स्टार्टिंग एट दैट मोमेंट, कोई आपको ऐसे नहीं बोला कि बैंगलोर में शुरू करना चाहिए या हैदराबाद में शुरू करना चाहिए, सिंस इट वाज स्पेसिफिकली IT, तो ऑब्वियसली बहुत लोग आपको भी सजेस्ट किए होंगे कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर और हैदराबाद. तो आपको क्यों यहाँ से कनेक्टेड रहने का मन किया? वाई यू स्टिल रिमेन्ड एट भुवनेश्वर? व्हाट वाज दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू बी एट दिस प्लेस एंड ग्रो द कंपनी फ्रॉम 0 to 1? See, it's a very nice question. Let me tell you that I have been told by many people, be it my investor, be it be the customer, everybody said कि आप उड़ीसा में क्यों हैं, आप मुंबई में कीजिए कि दिल्ली में कीजिए कि बाहर में. बट माई रूट्स आर हियर. सो उड़ीसा के एक दूसरे लगाव है कि उड़ीसा में कुछ करना है, उड़ीसा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है. एक उड़ीसा का जो प्यार होता है, माने कनेक्ट टू उड़ीसा जो होता है ना, शायद दैट टाइम मेरे अंदर में बहुत था, मोर उड़ीसा ओरिएंटेड. इसलिए तो मैं आई डिडंट गो टू USA, एंड मेरा कंपनी मुझे बोल रहा था जाने के लिए, सेंड मी टू USA. आई डिडंट गो, आई सेड वांट टू स्टे विथ माय पेरेंट्स. तो आई वांट टू स्टे एट होम, डू समथिंग माय ओन प्लेस. ये जो कीड़ा था ना, शायद इट वाज द वन मोस्ट रीजन टू स्टार्ट समथिंग उड़ीसा. Second thing that but objective is to go global. So then starting Bhubaneswar, we started to move out of the city, go to Kolkata, go to the Noida, Mumbai, Delhi, I mean that Hyderabad, Guwahati. We have currently total of 6 delivery centers. So वो तो out of the country some places also किए. But हमारा जो है कि we have to build some brand from Odisha. लोग उड़ीसा को पहचाने कि हाँ उड़ीसा से में लोग अच्छे सर्विस दे सकते हैं. डेफिनेटली दिक्कत हुआ इनिशियल डेज, लॉट ऑफ डिफिकल्टी. स्टार्टेड 23 years बैक, द कल्चर वाज नॉट रियल, माने द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट प्रॉपर्ली सेट. लोग मिलना मुश्किल हो जाता, कोई आके मिलना, लॉट ऑफ डिफिकल्टी वाज. बट आई हैव सीन द इवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री हियर लास्ट 23 years इन द सिटी. वी हैव कम, माने बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग. उड़ीसा हैज ऑल इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ है टू बी ग्लोबली विजिबल होने के लिए, सब कुछ है. सो ऑल डिपेंड्स कि
हम किसको अट्रैक्ट करते हैं, वो माहौल कितना जल्दी ठीक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली मैंने सर वो आपका फोटो देखा है जहाँ पे पहला ऑफिस शुरू हो रहा था, वहाँ पे कंप्यूटर्स 3-4 रखे हुए थे और छोटा सा ऑफिस से शुरू हुआ था। अभी सर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, मेरे से ज़्यादा आप स्टार्टअप से मिलते हैं, टाई के थ्रू लोग मिलते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जब उनको आज कोई बोलता है कि वाई आर यू एट भुवनेश्वर और एट उड़ीसा, वाई डोंट यू कम डाउन टू गुड़गांव और हैदराबाद और बैंगलोर, तो उनको क्या बोलना चाहिए? देखिए, आज के डेट में वो बैरियर नहीं रहा। या अर्लियर इट वाज, टुडे वर्ल्ड इज ए वन सेम विलेज, वन मार्केट प्लेस। आज देखें, मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स कमिंग आउट ऑफ टायर टू सिटी काइंड ऑफ थिंग। Lot of things happening on the most development happen tier 2, tier 3 cities right now. Tier 1 city में lot of challenges है, Bangalore or Noida or Gurgaon or Mumbai में there are lot of challenges also there, but opportunities are there also. Because वहाँ पर ऑलरेडी एक मैच्योर इकोसिस्टम बन चुका है, बी इट इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम, बी इट मेंटरिंग इकोसिस्टम, नेटवर्किंग इकोसिस्टम बन चुका है कि बिजनेस का माहौल ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है। वो एडवांटेज मिलेगा, कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। बट उड़ीसा जैसे जगह में या भुवनेश्वर जैसे जगह में इफ यू स्टार्ट समथिंग मच मोर एडवांटेज, फ्रॉम हियर यू कैन स्केल एंड connect to other cities, other states for different things. You want technical collaboration, you want technology collaboration, you need investor, mentor, go one way. But एक तो एडवांटेज है कि राइट नाउ वी आर गेटिंग रिसोर्सेस, जो पहले दिक्कत था मिलना, राइट, दैट इज सॉर्टेड आउट, इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम। बिकॉज टेक्नोलॉजी में आई थिंक द इंडिया का, वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द बिग बॉयज दे हैव द सॉफ्ट इन IT इज कंसर्न, उनका अपना खुद का ऑफिस खोल चुके हैं। सो विजिबिलिटी है, क्राउड, एक साइजेबल क्राउड है IT में है, इसको करते। दूसरे चीज़ में भी यू कैन गेट, बिकॉज एक आई हैव सीन द स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम सिंस 2013-14। मैंने इनिशियल डेज में देखा हूँ 2010 में, जैसे हम लोगों ने पहले स्टार्टअप के बारे में बात करना शुरू किया, देन अभी तक किया। वी हैव, मुझे याद है सर, आप स्टार्टअप पॉलिसी सबसे पहले आप उसमें थे, उस टीम में थे। जो टीम में थे उसको हमने ये किए, बट करने के बाद आज के डेट में कि लोगों का समझ, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, समझ में है, रिसोर्स मिल जाएगा, कॉस्ट बहुत कम है। यू नीड टू फाइंड आउट द राइट काइंड ऑफ को फाउंडर और द पार्टनर EVG है। एंड सेकेंड है कि यू हैव टू फाइंड इन्वेस्टर मिलना थोड़ा, यहाँ दैट क्लाइमेट इज नॉट दैट बिग और एफिशिएंट यू में से और कंड्यूसिव कंपेयर टू अदर सिटी, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा अब, बिकॉज ये कंपटीशन हो रहा है। तो अदरवाइज टुडेज वर्ल्ड, यू हैव द इंटरनेट वर्ल्ड, ChatGPT वर्ल्ड, AI वर्ल्ड, एवरीथिंग अवेलेबल इन रिमोट प्लेस। अभी आफ्टर पैंडेमिक ये सिखा दिया कि वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है कॉन्सेप्ट में, पीपल आर वर्किंग, सर्विंग सिंगापुर कंपनी, स्टेइंग इन केंद्रापड़ा। Obviously. गांव में जाके भी काम करते थे, इज पॉसिबल। सो आई डोंट थिंक दैट मच बैरियर, बट यस, यू हैव टू stay connected both the places. Obviously. Sir, you manage more than 3,500 people. And for a student or a professional who is watching this, for them, what is a very prominent red flag for you? मैं जो देख रहा हूँ कि आज के डेट में many people are coming for job to me. प्रोफेशनल जो है आते हैं, उनका इंडस्ट्री नॉलेज, जो काम करने का, बहुत सुपरफिशियल हो जाते हैं। जो गूगल यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं पार्ट, एंड ऑन ग्राउंड काम करना थोड़ा अलग होता है। सो इंडस्ट्री रेडी होने के लिए, एंड यू नीड टू बी नोटिस्ड। मान लो आज के डेट में 100 लोग मार्केट में आते हैं, 10 लोग को नौकरी मिलता है, 10 लोगों के अंदर आपको रहना है। इसके लिए नीड टू बी डिफरेंट, आपको कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए। क्या डिफरेंट हो? आपका काम के बारे में मालूम होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका रियल लाइफ प्रोजेक्ट के कुछ एक्सेस और सम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने करके आया हूँ। हो सकता है सेम नहीं किया, कुछ तो करके आया हूँ, कंप्लीट करके आया हूँ। टीम में काम करना बहुत, व्हेन यू डू लाइफ प्रोजेक्ट और डू समथिंग ऑन दैट, यू विल लर्न टू हाउ टू वर्क इन टीम। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड। हम जब लोग को रिक्रूट करते हैं, लोगों को लेते हैं ना, हम एक ही चीज़ देखते हैं कि एटीट्यूड। एवरीथिंग यू कैन लर्न, आपने सीखा नहीं या सीख जाएंगे 3 महीने 4 महीने में। टेक्नोलॉजी सब कुछ मिलता है, इंटरनेट में मिलता है, सब मिल सीख जाएंगे।
पर एटीट्यूड ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बंदे आ रहे हैं ना, स्पेंड सम टाइम बिफोर जंपिंग इनटू थिंग्स, स्पेंड सम टाइम इंडस्ट्री, चाहे इंटर्नशिप हो, फ्री में हो, पैसा में हो, स्पेंड सम इंडस्ट्री, नो व्हाट इज हैपनिंग, देन कम, वो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो। जरूर। और सर नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एआई रैपिडली। मैंने देखा तत्वा का एक ओमनी एजेंट एआई भी लॉन्च हुआ है। तो ऐसा कौन से स्किल्स हैं जो अब ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए, लाइक ड्यू टू एआई दे हैव बिकम मोर वैल्यूएबल एंड दोज प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन दैट। ये कौन से स्किल्स हैं? देखिए, वही हम बात कर रहे हैं कि AI कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग 100%। सेकंड चीज़ है कि जो अभी न्यू कंसेप्ट इसका AI गवर्नेंस, व्हाट एक्सटेंट यू शुड यूज AI इन द कंपनी। लेट्स से एक बता रहा हूँ, आप आ रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, वहाँ बैठ के अगर बात करके आप AI बात ऑर्डर फिक्स कर देगा, खाना आ जाएगा, तो यू डोंट फाइंड एनी पर्सन ओवर देयर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा। एक है। और एक सिनेरियो है कि बंदा आएगा, पूछेगा उनसे, मान लो यू हैव गॉन टू बैंकॉक, वो अपने लैंग्वेज में बताएगा, अपने स्टाइल में बताएगा, ये मिल रहा है, ये खाना मिल रहा है, आपको समझाएगा, आप उनसे बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये एक्सपीरियंस होता है, ह्यूमन टच होता है। उस खाना लेके आकर उनका देने का स्टाइल है, आप कभी गुस्सा हो जाते हैं, ये जो चीज इमोशन का जो खेल है, दैट इज एक्सपीरियंस, ये AI में मिलते हैं। सो आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए इंडिविजुअल, सोसाइटी, हमको ठीक करना है व्हाट एक्सटेंट हम AI की यूज करेंगे, व्हाट, और उसके बाद ह्यूमन कितने यूज करेंगे। अभी तो हम जो प्लान का जो काम कर AI एजेंट का, एटलीस्ट 60-70% AI काम करता है, रिपीटेड जब होता है, 20-30% ह्यूमन टच चाहिए, ह्यूमन इंगेज पे। सेकेंड, अभी क्या होगा ना, लोग बोलते हैं जॉब रिप्लेस हो गया, नो नो, रिपीटेटिव जॉब जो होता है वो हो गया, बट लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप, डाटा साइंस में हो गया, इसमें हो गया, और अदर एरिया में आ रहा है। सो लोगों को वहाँ फोकस, रीस्किल होना पड़ेगा काम करने के लिए। सो जब इंटरनेट आ रहा था लोग बोल रहे थे, जब कंप्यूटर आ रहा लोग बोल रहे थे, एवरी 15-20 ईयर्स सम चेंजेस विल हैपन, अंडरस्टैंड। आज AI है, कल दूसरे कुछ चीज़ आ जाएगा। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि माई पॉइंट इज दैट कि AI आने के बाद टोटल वी कैन नॉट एलिमिनेट ह्यूमन टच, रहेगा तो सोसाइटी अच्छा नहीं लगेगा। वी हैव टू ब्लेंड अप बोथ, कितना यूज करेंगे, द सोसाइटी, द टाइम एंड द पॉलिसी विल डिसाइड। Obviously. So we can think कि AI is just removing the systematic task and we have to add our Repetitive task. repetitive task, and we have to make sure that the human touch is there in as many things possible. Sir, you famously transitioned Tatva from a startup driven like a founder driven company to a professionally driven company. तो अगर जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स देख रहे हो, वो उनको एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि व्हेन आई शुड शिफ्ट फ्रॉम अ स्टार्टअप ड्रिवन कंपनी टू अ प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी, वो ट्रांजिशन का सही टाइम कब आता है, वो कैसे जाने कोई? वो इस चीज़ के ऊपर कोलंबो में एक अच्छा सा पैनल बैठा था कि व्हाट टाइम द पर्सन शुड थिंक। तो वही बात का हम लोग कह रहे थे कि जब स्टार्टअप आज शुरू करते हैं ना, थिंक लाइक मैं जब तत्व शुरू कर रहा था, आई ऑलवेज थिंक कि आई एम द फर्स्ट एम्प्लॉय। यहाँ को फाउंडर, मैनेजमेंट, बॉस, ये वार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। जो पुराना कल्चर था, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, वो हम बॉस होते थे, MD होते थे, चेयरमैन होते थे, वो तो सिस्टमेटिक है। बट और जब काम करते हैं तो वी आर ए टीम, आई एम द फर्स्ट एम्प्लॉय, यू आर द 10th एम्प्लॉय। सो डे वन से यू हैव टू पुट द माइंड कि वी आर प्रोफेशनली मैनेज। अगर आपका जितना अधिकार है, मेरा भी उतना अधिकार है इसके, बट हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, एक्सपांशन, जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में हो सकता है यू टेक डिसीजन, बट डे टू डे ऑपरेशन में यू ऑल पार्टिसिपेट एज ए टीम। मतलब होने से ही यू विल एबल टू रिटेन पीपल। अगर लोग पैसा के लिए नहीं काम करते हैं, पैसा के लिए प्लस कितना इंपॉर्टेंस मिल रहा है मुझे, ये कंपनी में कौन हूँ, वो लोगों को रखने के लिए, आई मीन दैट कंपनी रिटर्न करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई शुरू करता है ना, एनीबडी व्हेन यू स्टार्ट द कंपनी, डोंट मेक देम एनीबडी फील वी आर द फाउंडर, को-फाउंडर, CEO, CTO नहीं, वी आर टीम मेंबर। सबका अपना अपना काम होता है, करता है। हाँ, मैंने डे वन से सोचा था, एंड अभी हम सोचे कि कुछ दिन के बाद, आफ्टर वंस आई गो IPO और समथिंग लाइक दैट, विल मेक ए प्योरली रन बाय द प्रोफेशनल्स। अभी हम लोग जो टॉप में मैनेज कर रहे हैं वी को फाउंड, बिकॉज
वी वांटेड हु द बेस्ट पीपल टू रन द, सबके लिए अच्छा क्या है, कंपनी का ग्रोथ, ये फाउंडर के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है कि ग्रोथ, दिन की वैल्यूएशन बढ़ेगा, वो पैसा कमाएगा ना। अगर इफ एवरीबॉडी इज ओन लिमिटेशन, अगर मेरा इंटरनेशनल मार्केट में और कोई चीज़ में समझ नहीं है, आई हैव टू, मुझे अगर, हाँ इट्स नॉट इम्पॉसिबल, मुझे लर्न करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, दैट विल टेक मच टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट यू फाइंड पर्सन लाइक यू, ऑलरेडी यू वर्क, तो आपने ऑलरेडी 100 मिलियन का बिजनेस कर चुके एक्सपीरियंस है, यू शुड कम एंड वर्क हियर, आई शुड टेक द बैक एंड। सो एक स्टेज के बाद, वंस यू सेट अप द प्रोसेस, टीम एंड एवरीथिंग होने के बाद, you should ask the best people to run the company, lead the company. That will bring much growth, much transparency, much brand equity, customer acceptance, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप खुद पकड़ के बैठोगे कि मेरा पास कंट्रोल रहेगा, मैं जो बोलूँगा, that is why many company fails expanding globally. बिकॉज आप क्या कहते हैं ना, अगर इंडिया कंपनी एक्सपांड कर रहा है यूके में और एनी कंट्री में करता है, सेम कल्चर लेके बोलते हैं, थोपता है कि तुम ऐसे काम करेगा। जापानी लोग क्यों एक्सपांड नहीं करते, नहीं कर पाए, इसीलिए कि दे वांटेड टू रिपीट सेम थिंग। दूसरी जगह में अपना खुद का स्टाइल होता है करने के लिए। इफ यू हैव द प्रोफेशनल पीपल देयर, वो अपने हिसाब से कंपनी चलाएंगे। ऑलवेज बेट टू गेट द बेस्ट पीपल, प्रोफेशनल्स who knows the subject, and always make a competition in the organization so that people can replace you. Equal opportunities हो। Yes. So that is why the organization you can expand and grow कर सकते हैं। वरना we will be same, एक दुकान है, दो दुकान है, चार दुकान, पांच दुकान में रह जाएंगे। We cannot like a Flipkart of the world और Amazon of the world. Obviously. सर अभी जितना टीम मेंबर्स है उनको आपको रीच आउट करना कितना डिफिकल्ट है, या आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि सारे जितने भी टीम मेंबर हैं तत्वा के, उनको आप थोड़ा सा पर्सनली उनसे बात कर सकें, ये आप कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे टीम में बॉन्डिंग बनाते हैं? देखिए, मैं एक क्या बोलते हैं ना, मैं एक पीपल्स लीडर हूँ, जैसे मैं बोलते हैं। मैं तो पहले आप देखेंगे फोटो, तो हम पहले एनी सेलिब्रेशन स्पेशल डे आई डू विथ माई सिक्योरिटी गार्ड और वी डू विथ माई द ऑफिस स्टाफ होता, ऑफिस बॉय होता, उनके साथ करता हूँ। उनको कोई पूछता नहीं, इसलिए मैं आई स्पेंड टाइम विद देम, अच्छा लगता है मुझे। मैं आई नेवर मेक देम फील कि मैं CEO हूँ, कि MD हूँ, कि कोफा फाउंडर हूँ। मैं जाके आई मीट एवरीबॉडी, गो टू देयर डेस्क, मेरा पास मत आओ, एंड डोंट स्टैंड अप, यू सीट योर सेट, तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है, मैं आ जाता हूँ आपके पास बात करने के लिए। बात करके देन आई मेक देम फील, एंड यू हैव टू गिव पर्सनल टच, कैसे कि पर्सनल कनेक्ट। इफ यू वांट टू रिटेन गुड पीपल, यू शुड नो व्हाट इज गोइंग द माइंड। अगर कोई बंदा उनका थोड़ा सूखा लग रहा है, ही इज नॉट फीलिंग गुड, आप दो पद बोल रहे क्या हुआ है, कुछ इमीडिएटली आप कुछ नहीं करेंगे, वो ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। सो हमेशा एज ए लीडर, एज ए पर्सन, एज ऑर्गेनाइजेशन यू लीडिंग, यू शुड बी विद द पीपल, डोंट आस्क पीपल टू कम टू यू। और मेरा रूम में तो हमेशा एनीबडी, मैं जो अपना चैम्बर ऐसे बोलता हूँ, आई नेवर फील एनीबडी कैन कम एंड मीट मी, जस्ट मैं कोई नहीं है तो यू कैन कम एंड मीट मी। Allow people to meet all about and call me any point of anybody has anything, you can call, my phone is open. But surprisingly nobody calls me and very people meets me, because जब उनको सारे जब भी तो मिलूंगा, सारे मिल लूंगा, रास्ते से मिल लूंगा, गाड़ी में बैठते हैं मिल लूंगा, तो क्या जाना है क्या नहीं। सो यू हैव टू ऑलवेज विद पीपल। कभी कभी मैं नहीं रहता हूँ, लोग पूछते सर आप चले जाए 50 अच्छा नहीं लगता है, आप रहते हैं तो आप सबके साथ बात करते हैं, आप पूछते सबके बारे में पूछते हैं। मैं सिक्योरिटी पूछता, अरे क्या हुआ है, तुम थोड़ा लटका हुआ मुँह लटका क्यों लग रहा है? नहीं सर कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं था, हाँ सर थोड़ा बुखार हुआ था। अरे ठीक है, आपने तबीयत, मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारा तनख्वाह काम है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट, योर फैमिली फर्स्ट। कोई कंपनी पूरा नहीं का, सो टेक केयर। सो ये सब चीज़ में यू हैव टू द पीपल। पैसा कमाना अलग बात है, लोगों का साथ मिल के रहना, बात करना का सर दूसरा एक एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन है। ऑब्वियसली सर, वूबल में हम लोग एक चीज़ इनिशिएट कर रहे हैं कि जो एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको फिल आउट करने के लिए हमने बहुत सारे कंपनीज़ को ऑनबोर्ड किया है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, और फिर जो एकेडमिक में स्टूडेंट्स हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करते हैं, ताकि वो भी प्रूव कर पाएँ कि हाँ ये प्रोजेक्ट मैं सॉल्व किया हूँ, एंड इट इज़ ऑल्सो प्राउड मूवमेंट फॉर देम दैट आई एम सॉल्विंग अ इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बीइंग अडॉप्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स? उनको कैसे बेनिफिट हो सकता है, और क्या उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माने यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब, आई थिंक ए मच
awaited thing in the country like India. We have 1.4 billion people. Many people coming out graduates, but many people said that they are not employable. So the industry academia जो touch होता है, that gives a person. मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ. मैं जब मैं स्टार्टिंग वहाँ पर we had got 6 months on the job training, and all the people get selected out of 6 months because 6 महीना काम करने के बाद कोई भी आपको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा काम कर. You don't have to go for प्लेसमेंट के जॉब प्लेसमेंट नहीं चाहो. सो इंडस्ट्री में काम करके चाहे 1 महीना हो, 6 इंटर्नशिप क्यों है? इसलिए है कि यू गेट ए फ्लेवर ऑफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे चलता है, काम कैसे होता है, बात कैसे लोग करते हैं, कल्चर कैसे होता है, इंफॉर्मेशन कैसे पास होता है, ये सब चीज़ को जानने के लिए आउट ऑफ योर कोर जॉब ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आप जिस चीज़ को स्टार्ट किया है, व्हाट आई थिंक यू स्टार्टेड इज ए ग्रेट इनिशिएटिव. इंडस्ट्री नॉट इन ओडिशा, ऑल ओवर द कंट्री, मे बी अदर कंट्री ऑल्सो द नीड दिस वन. Especially country like India, there is a huge gap between the industry expectation and what is available, resource available in the market. There is a gap in the market. The things you have started, you can fill it up. So यहाँ पर बच्चों को क्या होता है, the people who are candidates, whoever come to you, they get exposed to the projects. They get confidence कि प्रोजेक्ट में ख़त्म किया हूँ, कि काम कर रहा हूँ, जो अपना एक कॉन्फिडेंस होता है. उनको किताब में पढ़ना और ग्राउंड में काम करना, छोटा चीज़ के लिए काम करना अलग चीज़ होता है. ये एक एहसास, एक कॉन्फिडेंस आ गया. जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, बोल पाएंगे कि मैं कॉन्फिडेंस की मैं काम करके आया हूँ, उनको मालूम पड़ेगा कैसे काम होता है. दैट मेक्स ए कैंडिडेट मच acceptable more to the organization than other people on the line. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा कि हाँ, मुझे ये बंदा जो मैं जो चाह रहा हूँ, आई थिंक ही हैज सम 20-30-40% अंडरस्टैंडिंग द थिंग. ये तो इम्पोर्टेंट थिंग. और एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री वी आर कमिंग अप लॉट ऑफ चैलेंजेस और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स के जो हमको वी वांटेड टू सॉल्व. किसी को मार्केट एक्सपांड करना है, किसी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी को नया प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है, किसी को नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, जो भी प्रॉब्लम उनका है. एंड यू इफ एनीबॉडी आउट ऑफ दिस पीपल, आप जो ले रहे हैं स्टूडेंट लोग, उनको मिल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, दैट गिव्स लॉट ऑफ एडवांटेज टू इंडस्ट्री ऑल्सो. बिकॉज इंस्टेड ऑफ दे वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी, उनका जो करेंट फोर्स, करेंट रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करके टाइम देने से, एक काम करने से, दे विल, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव अलग है. ये साइड लाइन का जो काम है उनको करने से उनका वो दे विल बी डिफोकस. सो दे शुड, आपका जो बंदे जॉइन कर रहे हैं आपका में, दे शुड टेक दिस थिंग एंड डू इट, एंड इंडस्ट्री विल गेट पास ऑन टू देम. समवेयर ऑल्सो वी कैन एक्ट द इंडस्ट्री समथिंग ऑल्सो आउट ऑफ देम. बिकॉज अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वी डोंट चार्ज एनीथिंग टू यू. वंस सॉल्व, इफ यू फाइंड इज ओके, पे a small amount, some kind of thing, token of appreciation can be shared with you. This is a win-win situation, and if I am very sure, if you properly package it, properly position it, and spell out to the industry and the people, everybody will accept it. Obviously. So sir, going ahead, we have our headquarters in Odisha, but we are also expanding to different countries, and we have students. The community has students from all over India. We have some companies from different countries as well. We wanted your point that if we sit again here after 5 years, 2031 में हम लोग वापस बैठते हैं, तो ओडिशा कहाँ पे हो, लाइक यहाँ पे और स्टार्टअप्स आ जाएं जहाँ पे यहीं के लोग कंट्रीब्यूट करें, या फिर यहाँ के लोग दूसरे कंट्रीज में जाके, दूसरे जगह जाके काम कर रहे होंगे. व्हाट डू यू सी द फ्यूचर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट डायरेक्शन? Next 5 years, definitely Odisha will be in different place. Much better than what we are today right now. In age of AI, we will find lot of changes in our approach in business. रहेगा, be it be our any kind of business you say, and in education also, there might be especially health and education. They are going to see a lot of changes. Odisha, I am pretty sure, will have a very bright future,
and very well connected, will be well connected, because if you see India में जो है, Odisha is a smaller subset of India. Everything there. We have got everything in the, and Odisha में resource है, infrastructure है, minerals है, human resource है, education है, health, सब कुछ है. I don't see anything can stop Odisha's growth. Odisha 5 साल में बहुत आगे जाएगा. So I think we'll be seeing more and more number of startups growing, and the people from Odisha would be working in Odisha and producing it for the world. Absolutely. Sir, Wooble में हम कहते हैं show your work, don't just tell. At Tatva, when you see a resume with a 9.5 CGPA versus a student who has done some real work, real project, though failed in some of them, किसको आप ज़्यादा प्रिफर करेंगे? हम लोग जो रियल काम है, हम सर्टिफिकेट आज के डेट में लिया है, कहाँ पास आउट किया है, मतलब नहीं रखता है हमारे लिए ज़्यादा है कि आपने कौन सा रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. सेकेंड है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में किया है, एटीट्यूड क्या है. 3-4 चीज़ देखते हैं. सर्टिफिकेट अपने पास अलग होता है. ठीक है. और सर, ये रियल एक्सपीरियंस और मतलब जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और एजुकेशन के बीच में आप बहुत जगह विजिट करते रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो, तो क्या लगता है कि इसका मेन रीज़न कहाँ है? द प्रॉब्लम ऑफ द रूट, व्हाट इट इज़ दैट हाउ वी कैन गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में इतना गैप कैसे रह जा रहा है? वी सी दैट वी आर वेरी थियोरिटिकल. हम लोग, if you see our education system, we are trying to create job seekers. काम नौकरी कैसे मिलेगा, इसके लिए कितना पढ़ाई करके मगअप करके एंट्रेंस, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था. इंडस्ट्री अपने हिसाब से काम कर रहा है, उनको काम कर रहा है. सो देयर शुड बी, आई थिंक लॉ अभी हो गया, अभी दे गॉट समथिंग, अभी आ गया, रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया कि येस दे शुड कोलाबोरेट. जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. कोई MBA कर रहा है ना, 1 साल 1.5 साल उनको प्रैक्टिकल होना चाहिए. यू शुड स्पेंड अराउंड 4 आवर्स इन द इंडस्ट्री, 4 आवर्स इन स्टडी काइंड ऑफ थिंग्स. देन जो पढ़ेगा उसको यूज करेगा डे टू डे लाइफ में, वो एक्चुअली अप्लाई कर पाएगा. हम थ्योरी पढ़ते हैं, 2 साल के बाद कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ क्या आता है, कुछ पढ़ते हैं, अलग काम होता है, नॉट रिलेटेड. इंडस्ट्री सेम टाइम ऑल्सो दे शुड कम फॉरवर्ड टू इंश्योर दैट कि अगर मुझे फ्यूचर रिसोर्स रेडी करना है, आई शुड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, गो यूनिवर्सिटी, टॉक टू स्टूडेंट. आपका रिक्वायरमेंट जो है उनको बताओ, भाई नेक्स्ट 1 ईयर आई एम लुकिंग दिस काइंड ऑफ पीपल मेंटली रेडी कि यहाँ अगर मुझे जानना है, आई नो दिस इज व्हाट अ रिक्वायरमेंट, मुझे ये चीज़ पढ़ना है, ये ख़त्म करना है. So it's responsibility of both industry, academia, but the policy has to be there from the government कि कुछ होने से और अच्छा होगा. क्योंकि अनस्टेट पॉलिसी, अगर इंडस्ट्री बोलेगा कि अगर आपको इस टैक्स बेनिफिट लेना है, ये इंसेंटिव लेना, ये करना है, आपको इतने लोगों के इंटर्नशिप करके इंडस्ट्री करना है, एकेडमी से मिलना है, दे विल गो फॉर दैट वन. इनको अगर बोलना है, एजुकेशन सिस्टम बोलना है, अगर आपको ये करने से ये मिलेगा, ये करेंगे. सो गवर्नमेंट ऑल्सो प्ले की रोल, बट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, तीनों को मिलके काम करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा. और सर, एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि जो एजुकेशन का करिकुलम है, ये चेंज करने का प्रोसेस ही 5 to 10 ईयर्स है, वेयर एज द इंडस्ट्री चेंजेस इन 1 ईयर, मैक्सिमम 6 मंथ, 1 ईयर में इंडस्ट्री पूरा चेंज हो जाता है. तो ये गैप भी हमें, मुझे लगता है कि फिल करना चाहिए विथ एनी पॉलिसी दैट उसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, प्लस डायनेमिक अलाउ करना चाहिए, ताकि वो डायनेमिक कोर्सेज भी ऐड कर सके एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट. ऑल्सो सर, जब आप तत्वा शुरू कर रहे थे, तब आपने एक स्टोरी हमें पहले बताया था कि कैसे करके आप इंडस्ट्री गैप को फिल आउट कर रहे थे और वो कैसे करके एक बड़ा कंपनी बना. तो वो स्टोरी अगर एक बार बता सकें. नहीं, मैंने सोचा कि हम लोगों ने जब 2002 में कंपनी शुरू किया, वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सेलिंग इन द मार्केट. हम लोगों ने कुछ एरिया में आइडेंटिफाई, जैसे कि फार्मा है, रिटेल है. हम सोचे कि पॉइंट ऑफ सेल्स सॉल्यूशन बनाएंगे, बारकोड बेस, उसको मार्केट में बेचेंगे. उसके लिए पैसा नहीं था. वी हैड ओनली
लेस देन $100 एंड हम लोग के पास 3 आदमी थे, मी, माई को फाउंडर सेनापति, तपेंद्र सेनापति एंड another co-founder Shruti Tejasin Naik, हम तीनों थे. Then they were from the technology background. मैं बेचने वाला आदमी था, मार्केटिंग सेल्स का बंदा था. मैं बोला कि यू पीपल हैव टू बिल्ड एप्लीकेशन एंड मुझे बेचना है मार्केट में लेके. बट दिमाग में जैसे उबोराइजेशन कंसेप्ट होता है, उबोर क्या होता है कि दूसरे गाड़ी आपका प्लेटफॉर्म में दूसरे गाड़ी रिसोर्स को यूज करके ऑप्टिमाइज करना है. सो दिमाग में ऐसे में चलता था कि भाई कहाँ कुछ पड़ा हुआ है, ऑन यूटिलाइज है, तो कैसा यूज कर पाएंगे. सो दैट टाइम वी कम अक्रॉस ए प्लेस कॉल इडिकल सॉफ्टवेयर लिमिटेड, गवर्नमेंट उड़ीसा का था, जिसका माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप था. वी केम टू नो दैट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड. तो हमने जब वहाँ पर गया, देखा कि 60 कंप्यूटर्स, 4,000 to 5,000 स्क्वायर फुट स्पेस है, लोग हैं. हमने पूछा, आई इंटरेक्टेड विद द टॉप chairman of the company. He said कि no, I don't have any clue, to go and talk to the MD. MD से बात किया, बोले कि नहीं और काम नहीं है, बंद कर देंगे, क्यों खर्चा बढ़ाएंगे, ये करेंगे. सडनली मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए. आई नीड टू कम अप विथ सम प्लान. मैं उनको ऐसा, गिव मी वन डे, विल कम अप विथ सम प्लान. सो हम लोगों ने एक दैट टाइम वी lot of people, Infosys, TCS of the world, they are employing left and right lot of peoples from Odisha, and mostly taking the computer science people on that. But the people who are from electrical, mechanical, civil, lot of people are unemployed, moving here, they are not getting jobs. So मैंने सोचा कि नॉन IT लोगों को कैसे IT में कन्वर्ट किया जाए. So we build. मैंने पूछा, जब इंफोसिस यहाँ पर जाते पूछे कि दे सेड कि वी आर नॉट गेटिंग पीपल, जहाँ हमारा रिक्वायरमेंट है, जो लोग निकलते हैं बहुत गैप है, हम उसको ट्रेन करना पड़ता है 5-6 महीना लेना पड़ता है. इसीलिए मैं बोला ठीक है, और ये एक प्रॉब्लम है. तो हम लोग नेक्स्ट डे रात को सोच के हम लोग तीनों बैठ के बात किए. देन वी वेंट की वी कम विद आइडिया. फर्स्ट तो जो बनाए कि IT फॉर नॉन IT पीपल, जितने नॉन IT बंदे हैं उसको हम लोगों ने ऐसे कोर्स डिजाइन करेंगे, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर IT में IT के काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे 3 महीना में. तो हम लोगों के हमने क्या किया कि शायद देखिए, हम लोग IT नॉन IT करेंगे, जॉब लाइक एक्सपीरियंस देंगे. मतलब ये जो बंदे आएंगे ट्रेनिंग लेंगे, दे शुड नॉट फील दे आर गेटिंग ट्रेन, दे शुड फील डे वन दे आर वर्किंग फॉर समबडी. जॉब लाइक एक्सपीरियंस माहौल भी हमने इसे बनाया. इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ये ट्रेनिंग इससे शुरू होगा. मैंने हम लोगों ने बोला कि फर्स्ट 15 डेज हम आपको बेसिक ट्रेनिंग देंगे, 1 महीना देंगे, जैसे कि यू शुड नो एटलीस्ट C++, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देंगे आपको. देन आपको एक बैकएंड और फ्रंट एंड का ट्रेनिंग देंगे. देन विल पुट यू टू आवर लाइव प्रोजेक्ट्स. तत्वों का जो हम लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए सोच रहे थे, 2-4 प्रोजेक्ट के लेके हम लोगों ने लाइव, वी आइडेंटिफाई कस्टमर फॉर ईच वन. Then we make a team of 15 people on the technology side and put them with the project manager and things. After they are learning, they are part of that project development team. वो requirement study करने के लिए गए, वहाँ आके SRS बनाए, then build application. उनका पूरा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पूरा एक एक्सपीरियंस हो गया. 3 महीना में they could able to make some kind small things which we integrate and build our product इन कमिंग डेज. हमने बाद में उसको बनाया. सो उनको पूरा एक एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे स्टडी किया जाएगा, कैसे रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा, SRS बनाना पड़ेगा, डेवलपमेंट क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी कैसे होगा. सो दोज पीपल आर इन डिफरेंट टेक्नोलॉजी. ये हमारा था. एंड जॉब लाइक एक्सपीरियंस, उनको प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, पूछेगा काम दिया गया हुआ कि नहीं, ऐसे. सो दे वांट टू फील, बट दे वाज पेड. वो हमको पेमेंट करके सीख रहे थे. एंड ट्रस्ट मी दैट बिफोर दे कम आउट, दे वाज Infosys एंड TCS ऑफ द वर्ल्ड पिकिंग देम अप फ्रॉम बिफोर 15 डेज ऑफ द क्लोजिंग द थिंग्स. भाई हमारा बना हुआ चीज़ हमको दे दो. एंड दे आर टेकिंग विथ आवर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम तत्व एंड ऑल्सो कंप्लीट सर्टिफिकेट ऑफ इडिकल सॉफ्टवेयर लिमिटेड. दैट टाइम इट वॉज ए ह्यूज सक्सेस. एंड I think we have trained more than 1,200 people
with Eatcal software at that point of time. We make money, Eatcal software में money, हमको जगह मिल गया, 60 कंप्यूटर मिल गया, प्रोडक्ट को बनाने के लिए 60 बंदे मिल गए, उनको भी अच्छा हुआ कि उनको भी एक्सपीरियंस मिल गया ये करने के लिए. सो ये सब चीज़ के लिए इट्स ए विनिंग सिचुएशन. तो दिस इज व्हाट द थिंग आज के डेट में मैं देख रहा हूँ. इवन इफ व्हाट एवर रिक्वायरमेंट है, जो बड़े बड़े आईटी कंपनी हो, नॉन आईटी कंपनी हो, जो उनका रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री में जो निकल के आते हैं उसमें गैप है. एंड यू आर द राइट आफ्टर 23 ईयर ऑल्सो, मैं देख रहा हूँ, यू आर राइट पोजिशन अगेन सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ओके. सो सर, अभी जैसे तत्व में जो भी आते हैं, अभी भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो अभी कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, तत्व हम लोग वी आर वर्किंग विथ टॉप 100 कंपनी ऑफ इंडिया एंड फ्यू सिलेक्टेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द इंडिया. We have 6 delivery centers. We are 24/7 and selected international project also. तो हम लोग का we have हम आपके हम इतना मार्जिन होगा कि ये होगा, एंड वी वर्क विद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं. हमें ऐसे नहीं कि काम दे दिए खत्म हो गया, 2-3 साल काम बनाएंगे, उसको मेंटेन भी 3 साल में करेंगे. तो ये डिजिटल सोल्यूशन कंपनी, हम ऐसे स्पेसिफिक नहीं करते हैं. हम कस्टमर के पास जाते हैं, उनका प्रॉब्लम समझते हैं, फाइंड आउट ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ये उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है. आइडेंटिफाइंग दोज थिंग, बंडलिंग, वी बीट फॉर टर्नकी प्रोजेक्ट, पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड टू एंड हम देखेंगे. दैट इज वाई तत्व इज डिफरेंट दैन द अदर कंपनी. अदर कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई नेटवर्किंग देखता है, कोई अदर चीज़ देखता है. हम लोग पूरा एंड टू एंड देखते हैं, बिकॉज ओवर 22 ईयर्स हम लोग ईच एरिया में एक्सपर्टाइज बिल्टअप किए. तो सर, बहुत सारे लोग जो तत्व ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, व्हाट टू प्रिपेयर, सो दैट हम लोग अपने तरफ से अपना पॉइंट रख दे कि व्हाट द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग फॉर देम टू ज्वाइन? सी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के डेट में फंडामेंटल शुड वेरी क्लियर. यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, नो डाउट. और जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, यू शुड, ऐसे बोला कि शुड हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि किताब पढ़ के आप आ गए वहाँ पर. डू समथिंग एंड प्रैक्टिस. छोटा सा प्रोजेक्ट भी खुद करके आओ, आपको एंड वो उसको टेस्ट भी एंड यूजेबल हो सकता है. जैसे कि आपका जो बोलते हैं ना, आप यू कैन मेक समथिंग एंड इंश्योर दैट दैट इज यूजेबल. वो सब एक्सपीरियंस अगर हो जाए तत्व में आने से हमारा, बिकॉज वी आर नॉट लाइक बिग कंपनी लाइक इन्फोसिस, TCS ऑफ द वर्ल्ड. उनके पास ट्रेनिंग के इसके लिए दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द फंड. हम लोग चाहते हैं पूरा तुरंत कोई आएगा, एक दिन में काम करेगा, जैसे कि स्मॉल एंड मीडियम कंपनी. उन चीज़ के लिए यू नीड स्मार्ट गाइड. और सेकेंड, मैं बोलता हूँ कि कहीं भी, बिकॉज द बेस्ट प्लेस टू लर्न इज द स्मॉल एंड मीडियम कंपनी. आपको जितना स्कोप मिलते हैं बड़े कंपनी में नहीं मिलेगा. यू कैन स्टार्ट कैरियर स्मॉल मीडियम, देन गो टू द कंपनी. यहाँ पर आपको ग्राउंड, आपको फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. एनीथिंग यू डू, बिकॉज यू कम अक्रॉस ऑल द स्टेप्स टू बिल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चर, जो भी चीज़ कर रहे हो ना, ऑल द प्रोसेस यू गेट नॉलेज, थोड़ा नॉलेज मिलेगा. उसके बाद आप बड़ा जो भी जॉइन करोगे तो आसान हो जाएगा. तो लोग क्या कहते हैं, दे टू द सम पीपल, लोग बड़े कंपनी अलग होता है स्टाइल, यहाँ पर अलग होता है. बट मोर इम्पोर्टेंट इज टू बी स्टे सम टाइम, मिनिमम 1-2 साल. डोंट वर्क फॉर द मनी, वर्क फॉर द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर गेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट विल मेक अ ब्रेक योर करियर. Obviously. Well said, sir. So, sir, we have a community of good number of people. So, what would you like to convey to the community and the team members who are present? आप कम्युनिटी, आप जो द एरिया में यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग समथिंग फॉर, इट्स मोर इम्पैक्ट ड्रिवन है. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पैसा के लिए कर रहे हैं. आप अगर लोगों का एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, उसका काबिलियत बढ़ा रहे हो, इज समथिंग डिफरेंट मोर देन बिजनेस कर रहे हो. तो इसके लिए एक पैशन होना चाहिए, कनेक्ट होना. पैसा के लिए काम करोगे तो ये चीज़ नहीं कर पाओगे. अगर जो आपका काउंसिलर है, अगर वो एम्पैथेटिक के लिए उनसे बात करेगा कि भाई ये आप पढ़ रहे हो, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये कर, आप अगर इसे कर लोगे तो ये अच्छा रहेगा, नौकरी मिलेगा, इससे बात करेगा तो उनका कन्वर्ट आपके जुड़े होने का चांस ज़्यादा है. अगर मैकेनिकल वो हमारे सर्विस ऑफर देंगे, आप ऐसे काम करोगे, आपको ये मिल जाएगा, लेट जॉइन. सो पर्टिकुलर इन योर बिजनेस, your people need to be empathetic, need to be very good communication, and also ensure that that passion of building something, कि मैं ऐसे नहीं कि मैं नौकरी करने के आया हूँ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प अदर टू मेक देम मोर एफिशिएंट.
Obviously. Thank you so much, sir. Thank you for sharing your valuable information with us. This is the first podcast in this new office of ours. So, whatever value you have given to us, it is really helpful for the whole community and for the whole team. Thank you so much from all of us. नेक्स्ट 4 5 साल 10 साल 2 3 साल में देखूंगा कि मच बिगर ऑफिस, मोर लार्जर पीपल, ग्लोबल फुटप्रिंट. अब जो भी सपोर्ट चाहिए, इफ यू टाइम ऑलरेडी यूर हो, if you any need support to go to any country, other state, other things, you get all kind of support from me. Sure, sir. All the best. We'll reach out to Tatva also for the live project thing, and Most welcome. More other companies also. What an insightful conversation. Sir, thank you for being so candid and sharing these deep industry truths. If there is one takeaway from today, it is regardless of the advancements in AI or shifts in the market, the world will always have a place for someone who can solve real world problems. Sir's vision of making Tatva the first homegrown billion-dollar company from Odisha is a challenge to every student and professional listening to it right now. To our audience, remember that while your degree gets you in the room, your proof of work keeps you there. Don't just let this conversation inspire you, let it drive you to build your own digital identity and showcase what you are truly capable of. Thank you once again, Ayaskanta sir, for your time and for your incredible contribution to our ecosystem. To our listeners, we'll see you in the next episode. Keep building.